Hello, everyone. So, welcome to this problem of the day series of the GFG. So, we have this question, which is a hard level question, but very interesting question. The name of the question is minimum BST sum subtree. The name itself is defining कि ये question है क्या. Let's read the question first, understand the question, then we'll be writing it, right? So let me get this in Java because I'm going to do this in Java. We can do it in C++ as well, but I'm focusing on Java right now because the same things will be happening there. Only the syntax will be changed. The logic behind the question will stay the same. Okay, so let's not waste much time and move to the question. The question is given a binary tree and a target. So we will be given two things. One is the binary tree, and another will be a target value which will be given to us. So binary tree क्या होता है? We all know that binary tree is a tree in which each node is having at least two nodes, right? मतलब कि when a tree will be having two nodes, child nodes, you can say, right? It is a binary tree, or it will not be having anything, or it will be having a null, or it will be having two child, right? One child, two child, or null. This is a binary tree. Not more than two, maximum it will be having two child. This is a binary tree. तो हमें एक बाइनरी ट्री दिया होगा. तो whenever you are said कि बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसका मतलब होता है then they have given you a node, a root node. From that root node you can get everything out of that tree. You will be going like, for example, हमें ये root node 13 दे रखा होगा, node दे रखा होगा, value नहीं दे रखा होगा. If we want to get the value at that particular node, then we can get this because we are given the class node has already been prepared. So we can get to know if we want the data of that root, then we can get it via the node dot data. If we want to move to the left node, we can go to the node dot left thing. Similarly to the right. So this way we can get the whole tree. So that is why they just give one node. Right? If binary tree is given, it means the node, one node or the root node is given to you. Now, what is the question? Find the number of node in the minimum subtree with the given sum equal to the target, which is also a binary search tree. So let's split it into multiple parts. Find the number of node. Number of nodes. So basically we have to return a number. It means we have to return an integer value, and we can see in the function as well that we have to return a integer value, which is actually going to be number of nodes, which is actually going to represent the number of nodes. Number of nodes where? In the minimum subtree. In the minimum subtree. What does it mean? Minimum, what is the meaning of minimum subtree? Minimum subtree means that we have to find the subtree which is of the minimum size. Smallest subtree we have to find, but what should it be? It should be, or the minimum subtree should have the sum of all nodes, sum of the values of all nodes should be equal to the target value which is given to us, and that subtree should also be a binary search tree. Now, what is a binary search tree? A binary search tree is a binary tree which in which the left node should be the smaller than the root node, and right node should be greater than the root node. Okay, so let me take the whiteboard. Let me explain you the question right here. Okay, so let me take this. Okay. So let me take this color as black. Done. Okay. So we are asked that we have to find the number of nodes. So basically we have to return a count, which I'm taking C, which is going to come from a tree, a subtree, which is going to come from a subtree. Okay. This is going to come from a subtree. Okay. This is going to come from a subtree. Now, the condition comes if
we can return the count of this tree if it is a BST. If it is a BST, binary search tree, and sum of all the nodes, like for example 1, 2, 3, sum of all the values of the nodes should be equal to the target value which is given to us, right? This is the condition. If both the things are happening, if we have found a subtree, which is a BST, and its sum of all the nodes is equal to the target, then we can say that this subtree is eligible for the question. It is eligible for moving ahead, right? तो ये eligible है, फिर हम इसका काउंट का ट्रैक रखेंगे. अब मेरा आंसर जो मुझे रिटर्न करना था वो मैं रखूंगी मैक्सिमम वैल्यू, इंट मैक्स रखूंगी मैं उसको, ठीक है, इंट मैक्स रखूंगी. अब मेरे को ये सबसे पहले मिला, इसका काउंट वी नो दैट इसका सब ट्री का काउंट है हमारे पास 3. इस BST का काउंट है 3. तो ये फिर हम जो भी आया है उसका मिनिमम फाइंड करेंगे, जो हमारा आंसर है और जो हमारा अकाउंट है उसमें से जो भी मिनिमम होगा हमारा आंसर वो अपडेट हो जाएगा. तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा 3. तो दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? नहीं है तो विल सी. बाकी मतलब इट शुड बी क्लियर ऑल्दो. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब देखते हैं. तो मैं ये एग्जांपल लूंगी. आई टेक दिस एग्जांपल राइट फ्रॉम हेयर, ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट्स मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर टू यू फर्स्ट. ओके, हेयर इट इज. लेट मी कीप इट हेयर. इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं क्योंकि आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस यहाँ पर. तो मेरे पास है 13. इसका बहुत बुरा राइटिंग जा रहा है. ये इसका राइट नोड है 23, ये इसका लेफ्ट नोड है, नल है. और ये हमारा 17 आ गया है, ये हमारा नल, ये भी नल, और 17 का लेफ्ट नोड है 16, राइट? अब देखो, नाउ द थिंग इज, अरे इट इज वेरी अनक्लियर. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली फॉर यू and we'll come to you after that. ओके, तो ये ट्री मैंने बना लिया जैसे तैसे. नाउ द थिंग इज कि अब बात आती है, नाउ द थिंग इज दैट अब हमने क्या करना है, वी वांट टू मेक श्योर कि ये एक BST है, ये बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि हमारा पहला क्राइटेरिया इज BST ओनली. फिर उसके बाद हम सम पे जाएंगे, फिर हम सम चेक करेंगे, उसके बाद हम हमारे आंसर के लिए काउंट को अपडेट करेंगे. सो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज. लेट मी मार्क इट हियर, ठीक है? और इसको लेट मी मेक इट मोर क्लियर. ओके, इसको थोड़ा अच्छा रखते हैं. ओके, 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा बेटर बनाते हैं. ओके, तो ये मेरा आ गया है यहाँ पर, विच इज एक्चुअली टेलिंग कि हाँ, मेरा BST होना चाहिए, सम इज शुड बी इक्वल टू टारगेट, और काउंट होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग, इफ अ ट्री इज नॉट अ BST, तो फिर उसको हमें आगे मूव करने का कोई मतलब ही नहीं है. पर BST ही नहीं है तो हम सम कैलकुलेट करके उसको टारगेट से कंपेयर करने का कोई तुक ही नहीं है, राइट? इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू कंपेयर द सम विद द टारगेट, एंड नॉट ऑफ एनी यूज टू फाइंड द काउंट ऑफ द, right? So first we're going to find whether this tree is a BST or not. So how do we know that whether a tree is a BST? If I'm talking about this bigger tree only, ये वाला ट्री, मैं पूरे ट्री को देखना चाहती हूँ. I wanna see that if this a tree, a binary tree or BST or not. तो हमें पता है what is the criteria of being a BST. that BST का एक क्राइटेरिया है that ये जो रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू जो है, रूट की जो वैल्यू है, रूट का जो डेटा है वो ग्रेटर होना चाहिए अपने लेफ्ट के डेटा से, राइट? और
लेस होना चाहिए अपने राइट के डेटा से। तो यानी राइट का डेटा उससे बड़ा होना चाहिए और लेफ्ट का डेटा उससे छोटा होना चाहिए, राइट? दिस इज द क्राइटेरिया। नाउ लेट मी कीप दिस ऑल्सो समवेयर। ओके, तो एक ये हमारी ये कंडीशन आ गई है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है? दिस इज द कंडीशन। नाउ अब मुझे ये देखना है कि मैं कहूंगी हाँ ये इसका जो लेफ्ट का डेटा है वो 5 है, उससे 13 बड़ा है, और राइट का जो डेटा है वो बड़ा है, उससे वो छोटा है, राइट? दिस इज फाइन। बट इट इज नॉट अ सब ट्री, इट इज नॉट अ पीएसटी, क्योंकि जो लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं 16 17 उनसे भी तो बड़ा होना चाहिए ना, लेफ्ट में जितने भी आते हैं उनसे ये बड़ा होना चाहिए, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द थिंग। ऐसा तो नहीं है 17 इज द मैक्सिमम, 17 भी बड़ा है, 16 भी बड़ा है, ओनली 5 इज। तो अब हमें ये देखना होगा कि अब हम ये तो नहीं ले सकते एनी हाउ, हम ये वाला चीज तो नहीं ले सकते, ये वाला सब ट्री हम नहीं ले सकते, मतलब ये पूरा इज नॉट अ पीएसटी, ठीक है? पर अब हम उससे नीचे वाले सब ट्रीज पर जाएंगे। सो बेट फ्रॉम गोइंग अप टू डाउन, बेटर टू गो फ्रॉम डाउन टू अप, राइट? तो हमें लाइक वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम अप, फ्रॉम द टॉप नोड टू द लोअर नोड, राइट? वी डोंट हैव टू डू दैट। अगर हम लोअर हमें कभी मिल जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें मिलता है कि अगर यहाँ पे 16 की जगह लेट्स से 18 होता, तो अगर ये 18 होता है, 168 बन रहा है, वो भी होता, तो दिस इज नॉट इवन अ बीएसटी, ये नहीं है बीएसटी। अगर हमें स्मॉलर, द वेरी लोअर नोड, हम लोअर सब ट्री हमें जो पता चल रहा है इज नॉट अ बीएसटी, तो वो अपर वाले के अंदर ट्रैवर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? दिस इज नॉट अ वे, राइट? अगर हम यहाँ जाएंगे इट्स नॉट अ बीएसटी, तो ये इसके ऊपर वाला नोड विल नॉट ऑल्सो नॉट बी अ बीएसटी, तो ये भी विल नॉट बी अ बीएसटी। अब बचा कौन सा? सिर्फ ये वाला, दिस कुड बी अ बीएसटी, इसको हम चेक करेंगे। तो इसलिए फ्रॉम चेकिंग फ्रॉम द टॉप नोड वी शुड check from the lower node itself, right? Okay, cool. Now the thing is, अब हम फिर से ट्रैवर्स करते हैं, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। Now the thing is कि we found this कि हमें पता चल गया है कि बीएसटी कैसे होगा। तो अगर हमें ये नोड बता दे कि आई एम अ बीएसटी, तभी हम इसके लिए चेक करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर इसके चाइल्ड जैसे ये इसे बता दे कि यस आई एम अ बीएसटी, तभी ये आगे जाएगा, तभी हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ये तब बताएगा जब ये कहेगा कि हाँ यस आई एम अ बीएसटी। तो ये सब अपने चाइल्ड नोट्स पर डिपेंडेंट है। तो हम नीचे, हम जैसे हम ट्रैवर्स करते हैं ना एक बीएसटी में, पहले हम रूट से पहले हम लेफ्ट में जाते हैं, मतलब वी कैन ट्रैवर्स एनी वे। हम लेफ्ट, वो हम उसको लेफ्ट चाइल्ड वाला ट्रैवर्सल, इनवर्ड वो क्या बोलते हैं हम उसको, डिफरेंट ट्रैवर्सल होते हैं ना बाइनरी ट्री के, इन तो डिफरेंट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, यू कैन ट्राई दी post order as well, in order as well, कोई भी traversal you can try, okay? But we are going to move forward with the pre-order traversal। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, I will go, मैं रूट से कहाँ जाऊंगी, I will go from root to उसके लेफ्ट नोड पे, यहाँ पर गए 5 पे, I will go to the left node, ठीक है? अब लेफ्ट पर गए, लेफ्ट से अब हमें नल मिल रहा है, हम तब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे अंटिल वी फाउंड नल, ठीक है? जब तक हमें नल नहीं मिलेगा तब तक वी विल कीप ट्रैवर्सिंग। अब नल क्या है, नल उसे कुछ रिटर्न करेगा, नल हमें कुछ वैल्यू बताएगा, नल बताएगा कि मैं बीएसटी हूँ कि नहीं हूँ, नल हमें बताएगा कि मैं, एक क्राइटेरिया आएगा कि मैं बीएसटी हूँ या नहीं। अगर वो बीएसटी है, ठीक है, अब वो बताएगा कि क्या उसका सम। अब हमें ये भी देखना है कहीं हमें यही मिल जाए, ठीक? इसको भी तो हमें रखना ना, हमें हर सब ट्री का रिकॉर्ड रखना है, तो हम उसका सम देखेंगे, ठीक है? तो हम उसका सम देखेंगे, सम हमें मिलेगा, हम उसका फिर काउंट देखेंगे ताकि हम काउंट को अपडेट करते रहें, हमें काउंट भी मिलेगा, नंबर ऑफ नोड्स मीन्स, ठीक है? उसके बाद अब हमें ये देखना है कि लेट्स से इसका सम नहीं, जैसे हमें नल का पता है, नल हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि नल हमेशा एक बीएसटी है, तो नल होगा तो इट विल रिटर्न बीएसटी एज 1, ठीक है? वो बीएसटी हमें देगा सम, सम देगा वो 0, काउंट देगा वो 0। अब हमें देखना है, अब ये तो फॉर श्योर नहीं है, ये तो एक बीएसटी नहीं है,
ठीक है, मतलब ये बीएसटी है, बट ये वो उस क्राइटेरिया को, ये 3 के क्राइटेरिया को इसको 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 नहीं फुलफिल कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए देखना होगा। तो ये बीएसटी तब होगा ना जब ये अपने इसके अंदर जो इस वाले नोड से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट, इससे ग्रेटर होगा। तो अब हमें देखना है कि इससे ग्रेटर हो या इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम है, अगर वो उनसे बड़ा हो, उस मैक्सिमम से बड़ा होगा तो वो सभी से बड़ा होगा, राइट। वो मैक्सिमम से बड़ा है, अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो वो सबसे बड़ा है, राइट। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, अगर हम चाहते हैं नल में हम चाहते हैं ऑब्वियसली, अगर नल होगा तो वो एक बी, तो वो उससे तो बड़ा ही है, तो हम उसको बीएसटी कंसिडर कर सकते हैं अगर उसके लेफ्ट में नल है तो। बीएसटी इसकी, या उसके दोनों चाइल्ड मतलब उस कंडीशन को फॉलो करें कि उसका लेफ्ट उससे छोटा हो, राइट उससे बड़ा हो, या फिर लेफ्ट में नल हो या राइट में नल हो, तो भी उसको हम बीएसटी कंसिडर करेंगे, या कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, हमें ये बोलना चाहते हैं कि हाँ ये बीएसटी है, तो इसका जो इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ये बड़ा होना चाहिए। तो मैक्सिमम में हम ऐसा क्या रिटर्न करें कि वो उससे बड़ा हो, यानी मैक्सिमम में हमें रिटर्न करना होगा एक मिन, हमें मैक्सिमम में रिटर्न करना होगा एक मिन वैल्यू। मतलब हम हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है इंट मिन, राइट। सबसे मिनिमम वैल्यू होती है इंट मिन, राइट। तो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है इंट मिन, तो मैं रिटर्न करूंगी इंट मिन फॉर द मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम के लिए अगर कुछ नहीं है, नल है, तो वो इंट मिन रिटर्न करेगा मैक्सिमम के लिए। कैसे, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि ये उससे बड़ा हो, तो अगर मैं कोई रैंडम वैल्यू दूंगी, मान लो मुझे नहीं पता, हमने ट्रैवर्स नहीं किया, वहां तक डेटा तक पहुंचे नहीं 5 वाले, तो हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे, तो मिन से तो कोई भी डेटा हो वो बड़ा ही होगा, राइट। तो इसलिए हम उसमें रिटर्न करेंगे, तो हमें पता चल रहा है। और अब ठीक है, हमने इंट मिन रिटर्न कर दिया। अब ऐसे ही इसको देखना है कि ये इससे बड़ा है, अपने राइट वाले से बड़ा है। तो पहले तो देखेगा कि राइट वाला बीएसटी रिटर्न कर रहा है, राइट वाला कहता है कि हाँ मैं बीएसटी हूँ। अगर राइट वाला कहता है हाँ मैं बीएसटी हूँ, तो वो रिटर्न करेगा 1, यस आई एम अ बीएसटी। उसके बाद राइट फिर वो बताएगा मेरा सम क्या है। अभी यहाँ पर हमें पता चल रहा है इसका सम आ रहा है 17 + 16 विच इज 34, 30, नहीं, विच इज एक्चुअली, सॉरी, माय बैड, 7 and 6 is 13, इट इज 33, राइट, इट इज 33। ठीक है, वो कहेगा हाँ मैं, मेरा सम है वो, और मेरा नंबर ऑफ नोड्स है 2। और अब इसको देखना है इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, राइट में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, अगर ये 5 उससे बड़ा है, तो यानी ये बाकी मतलब 5 अगर उससे मिनिमम से भी छोटा है, तो वो बाकी सबसे छोटा होगा। तो मिनिमम इसका है 16, राइट। मिनिमम इसका है 16। अब मैं बोलूं कि अगर यहाँ पर भी नल होता, यहाँ पर भी नल होता, जैसे इसके केस में 23 के केस में यहाँ पे नल है, तो मुझे बोलना है कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी इससे छोटा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू में हम ऐसा क्या रिटर्न करें कि वो हमारा ये जो है मिनिमम के लिए स्पेस है, ये हमारा मैक्सिमम के लिए स्पेस है। मैक्सिमम के लिए तो हमने समझ लिया था कि इंट मिन रिटर्न करेंगे, ताकि उससे हमें इस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की लोड कब होती है, हमें कब नीड चाहिए होती है मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू की हमें तब नीड चाहिए होती है जब हमें अपने लेफ्ट को कंपेयर करना होता है, लेफ्ट को कंपेयर करना होता है, तो लेफ्ट से तो बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसे बड़ा प्रूफ करने के लिए हम इंटरमिन रखेंगे, और नल के केस में ही हो रहा है ये। और अगर हम चाहते हैं कि अब ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे बड़ी हो, तो हमें कुछ भी रैंडम देना है, पर हमें ग्रेटर बताना है उसे, तो हम उसके लिए इंट मैक्स यूज करेंगे। समझ गए, हम इसको इंट मैक्स यूज करेंगे, दैट इज वाई हम मिनिमम में मैक्स रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम में मिन रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज हमें मैक्स जो मिनिमम वैल्यू है उसको कंपेयर करना है, उसको हमें छोटा ही बता, मिनिमम वैल्यू जो है उसको हमें ग्रेटर बताना है एनी हाउ, क्योंकि मिनिमम से हम मिनिमम को हम एज अ ग्रेटर वैल्यू कंपेयर करते हैं, कि मिनिमम का हम यूज तब कर रहे हैं जब हम चाहते हैं कि राइट ऑफ द minimum of right should be greater than the
रूट वैल्यू, राइट। तो इसलिए हम इसको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा, इफ यू विल रिपीट द वीडियो देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद वी विल सी। लेट मी टेक एवरीथिंग, वन सेकेंड। वन सेकेंड। Okay, let me take all the things out, clear this. Okay, so this tree हम इसको यूज करेंगे, विल यूजिंग दिस ट्री। तो अब व्हाट विल आई डू, हम नल से ट्रैवर्स करेंगे। अब ये लेफ्ट के अंदर हम ट्रैवल करना चाहते हैं, वांट टू ट्रैवर्स इन फ्रॉम द लेफ्ट, तो नल शुड रिटर्न। तो हमें भी वी नीड 5 वैल्यूज टू बी रिटर्न्ड प्रॉपर्ली, वी नीड 5 वैल्यूज, राइट। तो we'll be returning an array for the good sake। तो मैं एक array रिटर्न करूंगी जिसके अंदर वैल्यूज होंगी कि इज इट अ BST, तो मैं 1 या 0 करूंगी। तो null will every time return yes 1 only, because it will say that yes I am a BST, and it will return sum as 0 for sure, number of nodes as 0 for sure। अब उसके बाद it will return, null will return the minimum value as max, because मिनिमम का मतलब हमें मिनिमम वैल्यू एज मैक्स रिटर्न क्यों करना है, दिस इज अ क्वेश्चन। ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, बट स्टिल इट इज अ क्वेश्चन कि हमें मिनिमम वैल्यू को मैक्स एज अ मैक्स क्यों रिटर्न करना है। सो द आंसर इज दैट कि मुझे मिनिमम कब चाहिए होता है, जब हम राइट वाले नोड को कंपेयर करते हैं, और राइट वाला नोड जो है उसका मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड। अब अगर उसका मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, अगर नल है तो हमें तो कुछ मैक्स वैल्यू ही रिटर्न करना होगा ना, इसलिए हम इंट मैक्स रिटर्न करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हमें किसी भी नोड की कब चाहिए होती है, जब हम चाहते हैं कि मैक्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री शुड, मतलब लेफ्ट के अंदर जितना भी डेटा है उसका मैक्सिमम शुड बी लेस देन द रूट। तो उसके लिए हमें वो छोटा ही होना चाहिए, मैक्सिमम शुड बी स्मॉलर, छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम उसके अंदर इंट मिन रिटर्न करते हैं। तो ये 3 वैल्यूज हैं, लेट मी स्टोर देम समवेयर एंड देन प्रेजेंट इट। तो अब हमारा जो मेन है, जो हमारा नल होगा, वो नल हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें ये रिटर्न करेगा, इन एनी सिचुएशन हमें वो ये रिटर्न करेगा, कुछ भी हो, चाहे वो राइट में नल हो, राइट का नल हो, चाहे वो लेफ्ट का नल हो, क्योंकि मेन जो हमारा राइट और लेफ्ट के अंदर ये चीजें यूज होने वाली हैं। राइट में अगर हमारा नल आ रहा है तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर कर, मतलब हम राइट में आ रहा है तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें ये मिनिमम है, राइट, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। और अगर वो लेफ्ट में आ रहा है तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो लेफ्ट में अगर आ रहा है तो वो छोटा होना चाहिए किसी भी केस में, तो इसलिए हमने इंट मिन लिया। और अगर वो राइट में, और अगर हम राइट का देख रहे हैं तो राइट वाला का जो मिन है वो भी बड़ा होना चाहिए, एनी केस, तो इसलिए हम उसके लिए अंदर मैक्स ले गए, राइट। ओके, कूल। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं तो नल हमें ये रिटर्न कर देगा, ये वाला 5 का नल रिटर्न कर देगा। सिमिलरली विल मूव टू दी Similarly, we'll be moving to the from here, from the left to, अब हमने नल ने हमें कुछ रिटर्न किया, तो व्हेन आर वी सेइंग, अभी हमें वी वांट टू मेक श्योर दैट ये वाला दिस ट्री शुड बी अ BST। सो फॉर दैट वी वांट टू मेक श्योर इसका जो मैक्सिमम है, विच इज एक्चुअली इंट में, उससे 5 शुड बी ग्रेटर, राइट, तभी इट विल बी कंसिडर अ BST। yes it is happening, ये वाला इतना पार्ट इज सक्सेसफुल है, इट इज हैपनिंग। नाउ वी वांट टू मेक श्योर कि जो इसके लेफ्ट वाला जो सब ट्री बन रहा है, ये वाला जो लेफ्ट में जो सब ट्री बन रहा है, उसके अंदर जो भी, जो लेफ्ट राइट में जो उसका राइट वाला जो डेटा है, उसके अंदर जो राइट में जो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल रहा है 16 है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये हमें दे रहा है 16 है, तो वो क्या होना चाहिए, वो उससे होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, मिनिमम शुड इवन ग्रेटर। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं वैसे हम ट्रैवल्स कैसे करते हैं, 13 पे गए, 13 हमें लेके जाएगा 5 पे, इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं।
राइट। अब हम चाहते हैं 13 हमें लेके जाएगा 5 पे। अभी और है क्या सब ट्री इसका? हाँ, 5 का है नल। ठीक है। अब हमने देखा नल है, तो हमने देखा ये तो नल ने हमें कुछ रिटर्न कर दिया, नल ने हमें रिटर्न किया ये, नल ने हमें रिटर्न किया ये। अब हम इस नोड पे जाने से पहले जाएंगे इसके राइट पे। राइट पे गए, राइट के लेफ्ट में कुछ है? यस है। वो 16 पे, 16 के लेफ्ट में कुछ है? हाँ है, विच इज नल। वो फिर वो भी ये चीज रिटर्न करेगा। 16 के लेफ्ट ने हमें ये रिटर्न किया, 16 के राइट ने भी हमें ये रिटर्न किया। 16 के लेफ्ट ने भी हमें रिटर्न किया, 16 के राइट ने भी रिटर्न किया। तो यानी अब 16 को लेफ्ट से भी कुछ मिल गया है और 16 को राइट से भी कुछ मिल गया है। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे 16 को, हम देखेंगे कि अगर 16 क्या रिटर्न करेगा, 16 रिटर्न करेगा कि क्या वो बीएसटी है। अब वो बीएसटी तब होगा जब उसके जो लेफ्ट में मैक्सिमम, लेफ्ट लेफ्ट का जो मैक्सिमम है, लेफ्ट ने क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की? इंट मिन, उससे बड़ा है। यस वो बड़ा है, यस वो बड़ा है, क्योंकि मिन से तो सभी ग्रेटर होंगे, इसलिए हमने मैक्सिमम के अंदर इंट मिन रखा था। और राइट में जो मिनिमम वैल्यू है जो कि मैक्स है उससे छोटा है, यस उससे छोटा है। ये दोनों कंडीशंस हो रही है, तो नहीं नहीं, ये बीएसटी तो है। ठीक है। अब वो कहेगा कि अब हमें फाइंड करना है सम। सम कैसे फाइंड करेंगे? सम विल बी इक्वल टू जो लेफ्ट का सम है, लेफ्ट का सम है प्लस राइट का सम है प्लस उसका जो डेटा है, प्लस डेटा ऑफ द नोड, वो रिटर्न होगा। और सिमिलरली काउंट में क्या रिटर्न होगा? जो लेफ्ट का काउंट है, राइट का काउंट है और वो खुद एक 1। तो हमें इससे पता चलेगा लेफ्ट के, अब हमें सम, लेफ्ट का सम हमें क्या मिला था? 0। राइट का सम हमें क्या मिला था? 0। और खुद का डेटा क्या है? 16। तो हम सम में भेज देंगे 16। लेफ्ट का काउंट हमें क्या मिला था? 0। राइट का काउंट हमें क्या मिला था? 0। और खुद का काउंट क्या है? 1। तो हमें ये मिल जाएगा 1। और अब हमें मैक्स, अब हम इसमें मिनिमम वैल्यू सेंड करना है। तो मिनिमम हम क्या लेंगे? हमें पता है मिनिमम क्या होगा, जो भी हमारा लेफ्ट में आ रहा है हम कहेंगे लेफ्ट का जो मिन है वही रिटर्न कर दो मिनिमम में, क्योंकि रूट नोड तो उससे बड़ा ही होगा। बट नल के केस में तो हमारा जो मिनिमम था, मिनिमम था जो नल के केस में मिनिमम था, वो तो हमारा मैक्स था, है ना? वो नहीं रिटर्न कर सकते ना, वो तो हमने कंपैरिजन के लिए लिया था। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो भी मिनिमम होगा इसके, किससे, अगर हमें ये जो लेफ्ट के मिन, लेफ्ट वाला मिन, लेफ्ट का मिन और उसके खुद के डेटा, उसके खुद के डेटा में से जो भी मिनिमम होगा वो रिटर्न करेंगे। और मैक्सिमम में जो उसका मैक्स रिटर्न करेंगे जो भी। अब मैक्सिमम में क्या रिटर्न हो रहा था? हम कहेंगे ये राइट के जो मैक्स था और वो ही रिटर्न कर दो। बट नहीं, हम राइट का मैक्स नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि राइट का मैक्स में हमें मिन दिया था, वो थोड़ी मिनिमम हो मैक्सिमम होगा। तो मैक्स, मैक्स ऑफ दी राइट मैक्स कॉमा डेटा, खुद का डेटा, वो रिटर्न करेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं 16 क्या रिटर्न करेगा। 16 ने क्या रिटर्न किया फिर? 16 ने 1 किया था फॉर द बीएसटी, सम किया 16, नंबर ऑफ नोड्स किए 1, और उसके बाद वो मिनिमम में रिटर्न करेगा 16, मैक्सिमम में रिटर्न करेगा 16। ठीक है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम, पर अब हम देखेंगे कि जो इसका सम है क्या वो टारगेट के इक्वल है? नहीं है। तो फिर हम वापस मूव कर जाएंगे 17 के ऊपर। हम काउंट को या आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। आंसर इज स्टिल हमारा क्या है? आंसर इज स्टिल हमारा इंट मैक्स, मैक्स है, क्योंकि हमें आंसर को हम इंट मैक्स क्यों रखेंगे? ताकि वो किसी भी कंडीशन में अ, उससे छोटे वाले से ही अपडेट हो ना। अगर जो भी हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए हम मैक्स रखते हैं, ये बात याद रखना। ओके सो कूल। अब हम 16 ने हमें रिटर्न किया कुछ चीजें, लेट मी राइट दैट एज वेल। अब हमें 16 ने रिटर्न किया ये, ठीक है, 16 ने हमें रिटर्न किया ये। अब हमें चाहिए कि ठीक है 16 ने हमें रिटर्न कर दिया, बट 16 हमारे टारगेट के इक्वल नहीं दे रहा था ना सम को। सम को टारगेट के इक्वल, जब तक सम जो है हमारा टारगेट के इक्वल नहीं होता तब तक हम हमारे आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, आंसर अपडेट नहीं होगा। जब वो हो जाता है तो हम आंसर अपडेट कर देंगे, अगर वो मिनिमम है तो। अब हम 17 पे जाएंगे। ठीक है। अब हम वाप 6 इसका लेफ्ट हो गया, अब 17 का राइट टू सही, फिर ये रिटर्न करेगा एरे ऑफ ये नल की जो भी वैल्यू है। अब हम 17 का कंपेयर करेंगे। 17 कैसे हम कह सकते हैं कि बीएसटी है या नहीं? 17 हम देखेंगे
कि 17 के जो लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू है, 17 के जो लेफ्ट में मैक्सिमम थी वो थी 16, उससे बड़ा है, हाँ वो उससे बड़ा है। और 17 जो राइट में मिनिमम वैल्यू है, राइट की मिनिमम क्या थी, इंट मैक्स, उससे छोटा है, हाँ उससे छोटा है, तो बीएसटी है, तो 1 रिटर्न कर देगा। अब सम क्या होगा, जो 17 के लेफ्ट का सम है विच इज 16 और 17 के जो राइट का सम है विच इज 0, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब काउंट कितना रिटर्न करेगा, जो 17 के लेफ्ट का काउंट है विच इज 1, 17 के जो राइट का काउंट है विच इज 0, और वो खुद का एक काउंट तो 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, और हमारा मिनिमम वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, जो उसके लेफ्ट में मिनिमम है विच इज 16, और वो खुद उन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, 16 है, तो वो 16 रिटर्न करेगा। और मैक्सिमम में क्या रिटर्न करेगा, जो खुद है और उसका मैक्सिमम है, तो खुद राइट में जो मैक्सिमम था वो तो इंट मिन था, वो राइट में जो मैक्सिमम था वो इंट मिन था, तो और उन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 17, तो हमारे से 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें, अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं कि हमें 17 क्या देगा। तो हमें 17 ने ये सब रिटर्न किया, माय बैड, मैं आपको पहले सम मैंने आपको 17 बताया था, बट सम क्या होता है, उसका जो लेफ्ट का सम है, राइट का सम है, प्लस खुद का वैल्यू भी, तो 17 ये रिटर्न करेगा। अब हम 17 से वापस 5 पे जा सकते हैं। अब 5 क्या देखेगा, अब 5 देखेगा कि क्या मैं बीएसटी हूँ, वो देखेगा कि क्या मैं अपने लेफ्ट में, उसके लेफ्ट ने हमें क्या दिया था, ये दिया था, ये वैल्यू दी थी, तो जो मेरे लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू है विच इज इंट मीन, उससे मैं बड़ा हूँ, यस आई एम ग्रेटर देन दैट। अब मैं देखूंगा, 5 देखेगा कि जो मेरे राइट में मिनिमम वैल्यू विच इज 16, क्या मैं उससे छोटा हूँ, हाँ मैं उससे छोटा हूँ, तो आई एम बीएसटी फॉर श्योर। अब मैं सम कैलकुलेट करूंगा, 33 प्लस 30 प्लस 5 विच इज 38। ठीक है, और काउंट कितना हो जाएगा, 2, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का 0, राइट का 2, प्लस खुद का 1, तो 3, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू, तो उसके लेफ्ट का जो मिनिमम है विच इज मै इंट मैक्स, और वो खुद उनमें से छोटा कौन सा है, तो वो 5 है। ठीक है, और उसके राइट में, उसके जो राइट में सबसे उसका मैक्सिमम कौन सा है, तो राइट वाला जो है, और उसमें से खुद से कौन मैक्सिमम है, तो 17 इज द मैक्सिमम। तो अब हमने देखा कि टारगेट जो सम जो है वो टारगेट के इक्वल हो गया है, बीएसटी भी है, सम भी टारगेट के इक्वल हो गया है, तो आंसर को अपडेट कर देंगे हम 3 से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर हम आगे जाएंगे, तो हम देख लेते हैं 5 ने क्या रिटर्न किया। तो 5 ने रिटर्न किया, येस आई एम अ बीएसटी। ठीक है, yes and my sum is 38 and I have number of nodes is 3 और 5 is my least smallest one, है ना, मेरे 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 में सबसे छोटा 5 है और मेरे में सबसे बड़ा 17 है। अब हम जाएंगे वापस बैक टू द 13, 13 पे नहीं जाएंगे हम, पहले 13 से पहले 23 पे जाएंगे। तो 23 हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, लेट मी राइट दैट फॉर यू, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि 23 हमें क्या रिटर्न करेगा। क्रॉस इट यहाँ पर। ठीक है, 23 हमें रिटर्न करेगा, यस आई एम अ बीएसटी। ठीक है, यस इट इज अ बीएसटी, हमें पता है, वो तो हमें पता है कैसे ट्रैवल्स कराना है। एंड सम ऑफ माइन इज 23, और मेरा नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 1 है, और मेरे लेफ्ट का जो, मेरे में सबसे मिनिमम भी 23 है और मैक्सिमम भी 23 है। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न कर दिया किसने, ये हमें रिटर्न किया 23 ने, राइट, ये हमें रिटर्न किया 23 ने। ओके, ये हमें रिटर्न किया 23 ने। अब हम जाएंगे 13 पे, 13 क्या करेगा, अब ये देखने वाली बात है, 13 क्या कहेगा, 13 कहेगा क्या मैं बीएसटी हूँ, क्या मैं बीएसटी हूँ, तो वो देखेगा कि जो मेरे लेफ्ट में, यानी मुझे 5 का मैक्सिमम, 5 का मैक्सिमम शुड बी लेस देन मी, 5 का मैक्सिमम इज 17 विच इज नॉट लेस देन 13, राइट। और जो मेरा राइट है, राइट का जो मिनिमम है, राइट का मिनिमम इज 23 शुड बी ग्रेटर देन मी, वो तो हो रहा है, पर ये एंड की सिचुएशन है, तो ये 0 हो जाएगा, बीएसटी है ही नहीं, बीएसटी
है ही नहीं। तो सम कैलकुलेट करने का, काउंट कैलकुलेट करने का, या फिर अ, उसका मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही आगे कहीं ट्रैवर्स करने का या ऊपर कहीं ट्रैवर्स करने का मतलब है। सो बेटर नॉट टू डू दिस थिंग। तो अब हमें पता चल गया। अब हम एंड कर देंगे। हमारा आंसर ऑलरेडी हमें पता था क्या था। आंसर हमारा था 3। आंसर अभी तक